Hello everyone. Today I am going to explain you standard deviation, new chapter in which we will study measures of dispersion. In this, mean deviation, range, quartile deviation, all are out of syllabus. Only standard deviation is in syllabus, which you have to study. Now, what is standard deviation? Standard deviation is the square root of the arithmetic mean of the squares of all the deviations, and these deviations should be measured from arithmetic mean of the items. I hope it has been clear. ये formula कैसे बना, definition कैसे आई, I hope it is clear. Coefficient of standard deviation is when standard deviation is divided by the mean. Standard deviation is also calculated in three series: individual series, discrete series and continuous series. These three series you have done while you have studied earlier also in previous chapters. You have calculated mean, median and mode using these series and in these series we do have three separate methods. Three methods for individual series, the same three methods for discrete and continuous series. Which are these three methods? Direct method, shortcut method and step deviation method, right? And when we talk about individual series कौन सी होती है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, ओनली एक्स इज गिवन, ओनली वैल्यू आर गिवन, वैल्यू के साथ कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. द वेरी फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन इज टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट इट्स बेटर इफ यू ओनली अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, right? So let's start with the first method, direct method in individual series. Which steps we have to follow while calculating standard deviation? First we have to calculate actual mean. Actual mean formula is mean is equals to sigma x over n. You have to remind yourself about the formulas. You have to recall the formulas according to the series and according to the methods as well. डायरेक्ट मेथड है तो आपको पहले याद करना है कि डायरेक्ट मेथड में हम मीन कैसे निकालते थे इंडिविजुअल सीरीज़ में. शॉर्टकट मेथड में हम अज्यूम मीन लेते हैं, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन करते थे. तो आपको वही जो आप जिस मेथड से हम काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, आपको उसी मेथड से ही मीन कैलकुलेट करना होगा. अगर मीन आपने नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट कर लिया या आपने बेसिक मेथड से डायरेक्ट मेथड से किया और आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं आप शॉर्टकट मेथड में, तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा, आपके उसमें मार्क्स कट जाएंगे, राइट? तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि मीन आप कैसे निकाल रहे हैं. ये मीन्स एक्चुअल मीन निकालने के बाद यू विल कैलकुलेट द डेविएशन, दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स बार, डी निकालेंगे. अगला मेथड, अगला स्टेप क्या है, एक और कॉलम बनेगा डी स्क्वायर का, हर डी को आप स्क्वायर करते जाएंगे और फिर उसके बाद डी स्क्वायर का टोटल करेंगे और उस टोटल को करने के बाद यू विल यूज़ द फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन. ये जो है ये साइन है, सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन. आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू, द स्टेप्स आर क्लियर टू यू. लेट अस लर्न इट और recall it by with the help of a solution or an illustration. I'll give you one question. Calculate standard deviation and its coefficient from the following data. Data is marks are given 10, 8, 6, 14 and 12. Now the first thing what we have to do is we have to arrange the data in ascending order. So हमने x लिख दिया, ascending order में लिखा तो ये बन जाएगा 6, 8, 10, 12 and 14. After arranging it we have another work. The next step is to calculate actual mean sigma x over n. So sigma x means we have to take out the total of this sigma x. इन सब का टोटल हम करेंगे, इसका टोटल आया हमारा 50. नाउ 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आर 1, 2, 3, 4, 5. जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ की हम बात करें, उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना होता है n, राइट? लेकिन इंडिविजुअल सीरीज़ में n क्या है, नंबर ऑफ आइटम जो सामने हमको दिख रहे हैं, राइट? आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी हैव कैलकुलेटेड मीन, एक्चुअल मीन में पता चल गया 10. Now the third step is to calculate deviation from actual mean. ये जो actual mean हमने निकाला, right? So x minus mean means 6 minus 10 minus 4, 8 minus 10 minus 2, 10 minus 10 0, 12 minus 10 2, 14 minus 10
4। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, हमें डेविएशंस का स्क्वायर निकालना है। तो 4 4s are 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इट बिकम्स प्लस 16। 2 2s are 4 0, then 2 2s are 4 and 4 4s are 16, right? So now we will take the total of this sigma d square is equal to, total of it is 40, 16 plus 4 20, 16 plus 4 20 and 20 20 50. After doing it we will calculate the standard deviation. So here standard deviation, or you can say this, I'll write it here. आपको अपने नोटबुक्स में नीचे की तरफ को करना है, यहाँ पे आप करेंगे, बट ड्यू टू आई एम हैविंग मच स्पेस हियर आई शो इट हियर ओनली। स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू इन अंडर रूट, सिग्मा डी स्क्वायर इज 40, एन इज 50, राइट? सो इट बिकम्स, नाउ वी विल डिवाइड 40 बाय 50। 40 को जब 50 से डिवाइड करेंगे, 40 को 50 से डिवाइड, सॉरी हियर n इज़ 5, n इज़ 5, सॉरी दिस इज़ 5, n इज़ 5। 40 को जब 5 से डिवाइड किया इट बिकम्स 8। जब ये 8 आ गया, 8 का जब रूट निकालेंगे तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ रूट कैसे निकालना है। 8 लिखा, कुछ भी नहीं है तो पेयर इसी का ही बन जाएगा, राइट? तो अगर हम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे वही सेम चीज़ हमें यहाँ लिखने से, से इफ आई राइट 2 हियर वी हैव टू राइट 2 हियर, इफ आई राइट 3 हियर आई हैव टू राइट 3 हियर। तो 3 3s are 9, इससे बड़ा हो गया तो हमें 2 2s are 4, माइनस किया 4 आ गया, 2 + 2 4, राइट? हमें यहाँ पे कुछ करना है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि अभी आगे तो कुछ है ही नहीं, 4 के आगे हमें यहाँ पे कुछ लगाना है, राइट? अब इसके आगे पॉइंट लगाएंगे तो हमारे 2 0 बढ़ जाएंगे, एक नहीं बढ़ेगा 2 0 बढ़ेंगे। तो कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि 4 आ गया, 4 1s are 4 कर देते हैं। बेटा जो भी चीज़ हम यहाँ लिखेंगे सेम थिंग वी हैव टू राइट हियर ओनली। और एक पॉइंट लगने से सिंगल 0 नहीं बढ़ेगा, इन स्क्वायर रूट 2 0 बढ़ते हैं। तो 4 के बाद हम क्या लिखें? अगर हम 4 1 करते हैं तो 4 जो भी यहाँ लिखेंगे वो हमें यहाँ लिखना ही लिखना है, राइट? उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 41 1s are 41, 44 4s are 4 4s are 16, 1 कैरी, 4 4s are 16 और 1 17, 176। अभी भी 400 से बहुत कम है। 48 8s are 8 8s are 64, 8 4s are 32, 32 + 6 38, लगभग इसके पास पहुंच गया। 49 9s are और बड़ा हो जाएगा तो इट बिकम्स 48 8s are 384। माइनस करेंगे इसको, 10 में से 4 गया क्योंकि यहाँ से कैरी चला जाएगा, ये 3 हो गया, ये 10, ये 9 हो गया, ये 10। तो 10 - 4 is 6, 9 - 8 is 1, 3 - 3 0। इस 8 को भी यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 8 + 8 16 और ये 5 और हम 2 0 इसके आगे लगा देंगे क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी हमने पहले लगा दिया था। अब हर रिमाइंडर में हम 2 0 ही आगे बढ़ाएंगे। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट सम डिजिट हियर। 56 से नहीं डिवाइड करेंगे, अब हमें एक और डिजिट यहाँ पे ऐड करने हैं, वही यहाँ पे ऐड करेंगे कि हम इसको डिवाइड कर सकें। नाउ 562 2s are 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 5s are 10 और 1 13। हो सकता है, पॉसिबल है। एक और बड़ा करके देख लेते हैं। 563 3s are 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 5s are 15 और 1 16, 1 6 8 9 ज़्यादा हो गया, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे? 562 2s are, तो ये आ जाएगा 1 3 2 4, राइट? तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमने 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लिया, इसको यहीं पे हम रोक देते हैं। तो ये आ गया 2.82। दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। लेकिन हमें साथ में और क्या पूछा गया है? एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आप SD लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आया? 2.83 डिवाइड बाय मीन हमारा कितना आया था? 10। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो ये आ जाता है 0.283, सॉरी 282, 2 आया 0.2
2.82. So this is coefficient. So hence standard deviation is equals to 2.82 and coefficient of standard deviation is equals to 0.282. This is answer when we calculate standard deviation with the help of direct method in individual series. In shortcut method and step deviation method, I will be explaining you in my next videos. Thank you. God bless you all.